क्लोजिंग कैपिटल ना प्रायोजक छे ट्रेडबुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है। ગુડ આફ્ટરનૂન સ્વાગત આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં। હું યશ આપની સાથે। બહુ મહત્વપૂર્ણ દિવસ આજનો રહ્યો કે જ્યારે ગવર્નર સાહેબે પોતાની કમેન્ટ્રી આપી દીધી, બધું થઈ ગયું। નિફ્ટીની એક્સપાયરીનો દિવસ છે, વોલેટિલિટી ભરપૂર છે, બધું સમજીશું, પણ આવો પહેલાં હેડલાઇન્સ તો જોઈ લઈએ। આરબીઆઈએ સતત 9મી વખત વ્યાજ દરોમાં કોઈ પણ પરિવર્તન કર્યા વિના 6.5% પર સ્થિર રાખ્યો। નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે જીડીપી ગ્રોથનું અનુમાન 7.2, રિટેલ મોંઘવારી અનુમાન 4.5 પર યથાવત। દફા વસૂલી વચ્ચે માર્કેટમાં દિવસની ઊંચાઈથી ઘટાડો। નિફ્ટી 150 અંક ઘટી 24,150 ની નજીક। બેંક નિફ્ટી 100 અંકની મજબૂતી સાથે 50,250 ની આસપાસ। આઈટી પીએસયુ મેટલ શેર બનાવ્યું માર્કેટ પર દબાણ। ડાઉ ફ્યુચર્સમાં 100 અંકની નબળાઈ। યુરોપિયન માર્કેટમાં 1% સુધીની વેચવાલીનો માહોલ। એશિયન માર્કેટમાં નિક્કાઈ 300 અંક ઘટીને બંધ થયો। નબળા બજારમાં પણ ફાર્મા ઇન્ડેક્સ લાઈવ હાઈ પર। સિપ્લા નિફ્ટીનો ટોપ ગેનર। લુપિન, એલેમ્બિક, એબોટ, એલ્કેમ લેબોરેટરીઝમાં ખરીદદારી। પીએસયુ શેરમાં ભારે નફા વસૂલી। પાવરગ્રીડ નિફ્ટીના ટોપ ગેનરમાં સામેલ। એનટીપીસી, એચપીસીએલ, બીપીસીએલ 1.5% નીચે। અને આશરે જ આવો અમારા ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ પર જઈશું અને સમજીશું કે ભારતીય માર્કેટ્સ હવે કઈ દિશામાં આગળ વધતા તમને જોવા મળી રહ્યા છે। એક વાત સ્પષ્ટ છે કે જે પ્રકારે દિવસની શરૂઆત થઈ, ગેપ અપ હતું, ત્યારબાદ તમને જે છે તે ખાસ વોલેટિલિટી જોવા મળી અને જે સમગ્ર પરિસ્થિતિ હતી, ગઈકાલે જે રીતે ગેપ અપ જોયો અને ત્યારબાદ આપણે મૂવમેન્ટ જોઈએ, એની સામે આજે તમે એકદમ ફ્લેટિશનેસ અથવા તો ઘટાડાના સંકેત હતા તેમ છતાંય ફ્લેટ ખુલ્યા, એટલા માટે મેં થોડું ગેપ અપ કર્યું, પણ ત્યારબાદ તમે જુઓ છો મૂવમેન્ટ બહુ જ સ્ટ્રોંગ, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે। તો આ સ્થિતિ પર આપણે ખાસ નજર કરીશું। આવો પહેલાં તમને નિફ્ટીના ડેલી ચાર્ટ્સ બતાવી દઉં અને સમજાવીએ કે થઈ શું રહ્યું છે। એક્સપાયરીના દિવસે નિફ્ટીમાં વોલેટિલિટી ભરપૂર છે। આજે તમે જોશો કે ડેલી ચાર્ટ્સ પર એક એક્સ્ટ્રા લાઇન તમને અહીંયા જોવા મળી રહી છે। આ ટ્રેન્ડ લાઇન મેં પાછલા અઠવાડિયાથી બનાવેલી હતી, પણ પછી વચ્ચે મેં જે છે તે ખાસ જોવાનું છોડી દીધું। હવે ફરી એકવાર મને મન થયું આજે કે એક વખત ટ્રેન્ડ લાઇન પર નજર કરીએ। તો એ ટ્રેન્ડ લાઇનથી તમે છેલ્લા જે તમારા આ હાઈ બનાવ્યા હતા ત્યાંથી સાઇઝેબલ નીચે આવ્યા છો અને જે કહી શકાય કે ખાસ આ જે ઘટાડો છે ત્યાંથી તમે 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજથી સપોર્ટ લઈ ફરી ઉપર જવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો। તો આવી સ્થિતિમાં આ ટ્રેન્ડ લાઇન હવે તમને નેક્સ્ટ જે છે તે ખાસ લેવલ બતાવવાની કોશિશ કરે ના કરે એ તો બધી પછીની વાત છે, પણ મને એક વખત મન થયું કે ફરી એકવાર હું એ ટ્રેન્ડ લાઇનને સ્ક્રીન પર લઈને આવું। તો હવે તમારું 10 અને 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજનું કન્જેક્શન તમારા માટે એક અવરોધ બની રહ્યું છે। આ લેવલ છે 24,400, એટલે આજે પણ આપણે જે છે તે તમે દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો નજર કરો તો 24,400 ઓબ્વિયસલી આપણા માટે એક હર્ડલ હતું। ઉપર 340, આટલા દિવસથી ઓલમોસ્ટ આ જ રેન્જમાં છો તમે। 300-350 આસપાસ દરરોજ ટોપ બની જાય છે, 400 તમે પહોંચી શકતા નથી અને એ જ સ્થિતિ આજે પણ થઈ। તો 24,400 તમારા માટે મેક ઓર બ્રેક ઉપર તેજી માટે બનતું જોવા મળે છે। 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ આજે તમને જોવા મળ્યું, તેને નજીક જવાની કોશિશ કરી। 23,984, આ પણ થોડા ઉપર આવી ગયા આપણે। તો આવી સ્થિતિમાં થઈ રહ્યું છે હવે પર્ટિક્યુલરલી રેન્જમાં છો તમે। હવે આ રેન્જમાં થઈ રહ્યું છે કે હવે ઓલમોસ્ટ 24,000 અને ઉપર 24,400 આ રેન્જમાં નિફ્ટી ફસાયેલો છે અને આગળ હવે શું કરવું તે સ્થિતિ અહીંયાથી કોશિશ થઈ રહી છે કે નિફ્ટી શું કરી બતાવે તે હવે અહીંયાથી ખાસ સમજવાનું આપણે રહેશે। તો આજે ડેલી ચાર્ટ્સ પર એકદમ લિમિટેડ રેન્જમાં તમને કેન્ડલ જે છે તે આજે અહીંયાથી જોવા મળી છે। તમે નજર કરો તો આ કેન્ડલ જે છે તે બંને તરફની રેન્જ બતાવે છે। તમારા આજના લો બન્યા તે છે 24,092 અને ત્યાંથી ઉપર 340, એટલે કે બંને તરફ વોલેટિલિટી ભરપૂર બતાવી છે। 15 મિનિટના ચાર્ટ જોઈ લઈએ। 15 મિનિટના ચાર્ટના હિસાબથી તમને જોવા મળે છે કેટલી વોલેટિલિટી, જે મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ આ દિવસની પહેલી કેન્ડલ તમારી અહીંયા બની। તમે રેન્જમાં હતા, ત્યારબાદ ગવર્નર સાહેબની ખાસ કમેન્ટ્રીની રાહ જોતા હતા। 10 વાગ્યા અહીંયાથી ખાસ જે છે તે ધીરે ધીરે પછી વેચવાલી આવવાની શરૂઆત થઈ, અગેન રિકવરી આવી। તમે કેન્ડલની સાઇઝ જુઓ ખાલી, આ બે 15 મિનિટની કેન્ડલમાં તમને જબરદસ્ત વોલેટિલિટી બતાવી। પછી ત્યાંથી તમે બોટમ બનાવ્યા અને ત્યારબાદ જે શાર્પ બાઉન્સ બતાવ્યો છે તે જુઓ। અગેન સુપર ટ્રેન્ડ તોડવાની કોશિશ કરી, ત્યાંથી જ એક્ઝેક્ટ તમને જે છે તે ખાસ વેચવાલી આવતી જોવા મળી। શાર્પ સેલિંગ, અને એ શાર્પ સેલિંગ જેટલી તમે મજબૂતી જોઈએ હતી ઓલમોસ્ટ એ જ લેવલ પર તમને લાવીને છોડે છે। ત્યારબાદ ફરી એકવાર થોડી રિકવરી। અત્યારે પણ તમે જુઓ છો 24,150 ની આસપાસ તમે કારોબાર કરી રહ્યા છો, જે ઓલમોસ્ટ આ લેવલ થાય છે।
તમારા માટે થઈને. તો આ સ્થિતિ ખાસ તમે નજર કરો, 24,150 અહીંયા થાય છે અને આ જ લેવલની આસપાસ અત્યારે કારોબાર તમે કરી રહ્યા છો. તો વોલેટિલિટી ભરપૂર છે. તમે જુઓ છો તે પ્રમાણે ઉપલા સ્તરો પર ટોપ બનાવવાની કોશિશ થઈ રહી છે, પણ અગેન ત્યાંથી પછી સેલિંગ આવી જ જાય છે. તો આ પરિસ્થિતિ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જોઈ લઈએ. આમ તો એક્સપાયરીનો દિવસ છે એટલે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જોવાનો કંઈ મતલબ નથી હવે બહુ. તેમ છતાં પણ મેઇન ફાઇટ ચાલી રહી છે તે 200 પર ચાલી રહી છે. 200ના કોલ રાઇટર્સ ઉપર ટકવા નથી દેતા, એટલા માટે અહીંયા ફાઇટ ચાલતી જોવા મળી રહી છે. ચેન્જ પણ બતાવી દઈએ ફટાફટ. આજે ક્યાં મેજર એડિશન થતા જોવા મળ્યા છે. નીચે સપોર્ટ 24,000 24,100 છે, પણ મેજર કોલ એડિશન તમને આ 24,200માં જ આજે જોવા મળી રહ્યા છે. આવો આગળ બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ, બિકોઝ નિફ્ટી તો એક્સપાયરીમાં છે હજુ પણ, એટલે મૂવમેન્ટ છે. પણ બેંક નિફ્ટી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એક તો રેટ સેન્સિટિવ, અને એમાં પણ ગવર્નર સાહેબની કમેન્ટ્રીમાં બેંક્સને લઈને ખાસ વાત કરવામાં આવી છે કે બેંક્સે થોડું ધ્યાન રાખવું, ઓવર ક્રેડિટ ના થઈ જાય. ડિપોઝિટ માટે તમે પૈસાની જે વાત કરો છો, સપ્લાય લિક્વિડિટીના પ્રોબ્લેમ સાથે બધી વાત ગવર્નર સાહેબે થોડા કડક શબ્દોમાં કહ્યું છે. પણ બેંક નિફ્ટી તો સેલિબ્રેટ કરે છે. તમે ડેઇલી ચાર્ટ્સ જુઓ, અહીંયા 100 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ પર તમારો આ પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો અને ચોથો દિવસ, સતત ચોથો દિવસ કે જ્યાં તમે અટકી રહ્યા છો. આપણે વાત કરી જ હતી સવારે કે એક વખત તમને આ લેવલને નજીક જોવા મળે તો તમે ખરીદી કરી લો. એ લેવલ નીકળતું હતું 49,823 હવે આવી ગયા છીએ આપણે 23 પર. તો આ લેવલથી નજીક તમારા લો બન્યા 49,829ના, અને ત્યાંથી જેમણે ખરીદ્યું તેમને પછી ફરી એકવાર સરસ બાઉન્સ જોવા મળ્યો. ઉપર 50,440 સુધી ગયા આપણે. એટલે આજના દિવસે બહુ જ સરસ તેજી આવતી જોવા મળી. ઇનફેક્ટ સારું શોર્ટ કવરિંગ હતું, પણ ઉપરના સ્તરે ટકી ન શક્યો બેંક નિફ્ટી, અને એટલે જ ક્લોઝ 50,000 ઉપર આપવામાં સફળતા મળશે તેવું તો જોવા મળી રહ્યું છે. પણ પ્રોબ્લેમ તો છે, 50,500 હજુ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. આ તમારી 20 દિવસ 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ જુઓ તમે ખાસ, એ 760 પર થાય છે. અને આ જે 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ જે ઓલરેડી આપણે તોડીને નીચે ચાલી રહ્યા છીએ, તે તમારા માટે બેંક નિફ્ટીમાં થાય છે 904. એટલે જગ્યા ઉપર બહુ મોટી ખુલ્લી છે આવી સ્થિતિમાં. પ્લીઝ અહીંયા 50,000 ગણી જ લો, એટલે 50,760 અને 50,904 ઉપરની તરફ જગ્યા ખુલ્લી છે. એટલે જો કોઈ પણ બાઉન્સ લેવાનો હોય તો નિફ્ટી કરતાં બેંક નિફ્ટી વધારે સારા ચાન્સ છે. હવે ગઈકાલે પણ આપણે એ જ વાત કરી હતી, આજે પણ એ જ વાત કરી રહ્યા છીએ કે આ 100 દિવસની મૂવિંગ એવરેજને પાસેથી કંઈક એક વખત સપોર્ટ લઈ લે ને, કેમ કે 4 દિવસથી તમે દરરોજ આ લેવલને અડો છો, ત્યાંથી પાછા આવો છો. તો હવે કંઈક તો કોઈ જગ્યાએથી તમારે ડિસાઇઝિવ મૂવ લેવી હોય તો એક વખત આને ઉપર બહુ સરસ ક્લોઝ આપવું જરૂરી છે. જો એ નથી થતું તો પ્રોબ્લેમ રહેશે હજુ પણ. સો બેંક નિફ્ટી પોટેન્શિયલ બહુ જ સારું છે, પણ હું એવું માનું છું કે એટલીસ્ટ આજનું ક્લોઝ જે છે એ થોડી રાહત આપશે, અને આવતીકાલનું ક્લોઝ વધારે રાહત આપશે. બિકોઝ આ 100 દિવસની મૂવિંગ એવરેજને આસપાસ આટલા દિવસનો ટાઈમપાસ જોઈ લીધો આપણે. હવે એક વખત મૂવ લાવવી હોય તો એટલીસ્ટ આ 50,440 જે છે આજના હાઈ છે, અથવા તો તમે આ રિસેન્ટ જે હાઈઝ જુઓ છો એ બધાની અંદર કંઈક 500નું પણ ક્લોઝ આવી જાય ને તો પણ થોડો ભરોસો થાય બેંક નિફ્ટી પર. એટલે હવે એક વખત રાહ જોઈએ આપણે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની પછી વાત કરીશું, પણ પહેલાં 15 મિનિટના ચાર્ટ હું તમને બતાવું કઈ રીતે અહીંયા પણ વોલેટિલિટી જોવા મળી છે. આ છે તમારી દિવસની શરૂઆત, રાઈટ. આ પહેલી કેન્ડલ તમને બનતી જોવા મળી. અહીંયાથી ખાસ તમને જે છે તે શાર્પ વેચવાલી આવતી જોવા મળી. ગવર્નર સાહેબે બોલવાનું શરૂ કર્યું, પછી તેજી હતી, અગેન થોડું મૂવમેન્ટ, પછી તેજી. એટલે 15 મિનિટની કેન્ડલ જુઓ તમે, કેટલી વોલેટિલિટી તમને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળે છે. ઝિગઝેગ મૂવ્સ, ત્યારબાદ તેજી આવવાની શરૂઆત થઈ તો એ તમને દિવસના ટોપ સુધી લઈ ગઈ. એક વખત ટોપ બનાવ્યા ત્યાંથી પછી શાર્પ સેલિંગ પણ આવતું જોવા મળ્યું. અગેન થોડી ખરીદદારી તમે જુઓ છો. અત્યારે જો આપણે વાત કરીએ 50,180 ઉપર 440ના હાઈ બનાવ્યા બાદ તમે લગભગ અહીંયા આ લેવલને આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યા છો. એટલે બેંક નિફ્ટી માટે પ્રોબ્લેમ્સ છે, હજુ પણ ક્લિયર નથી થયા. આજનું ક્લોઝ અને આવતીકાલનું ક્લોઝ બહુ જરૂરી રહેશે, તો કંઈક ટ્રેન્ડ ચેન્જ વધારે ક્લિયર થતા તમને જોવા મળે. આ છે બેંક નિફ્ટી. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરી લઈએ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબથી 50,500 પર જગ્યા પ્રોબ્લેમ છે. જુઓ, આજના દિવસે તમે 50,000 તો ક્રોસ કરી લીધું. 50,000ના કોલ રાઇટર્સને તો આપણે બેસાડી દીધા. અહીંયાથી પુટનું તમે જુઓ કારોબાર, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સારા છે, પણ પછી આગળ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે તે 50,200 પર આવી રહ્યો છે. 50,200માં તમે જોઈ રહ્યા છો કોલ રાઇટર્સ જે છે તે અહીંયાથી ખાસ અગ્રેસિવ થવાની હજુ પણ કોશિશ કરી રહ્યા છે. એટલે જ તમે 50,170 190 આસપાસ અટકી રહ્યા છો આજે. અને પછી મેજર જગ્યા તમારા માટે બને છે તે છે 50,500. 50,500ને એક વખત ક્રોસ કરવાની પૂરી કોશિશ સ્ટ્રોંગલી કરે બેંક નિફ્ટી, પછી જ કંઈક વધારે તેજીના સંકેત છે. નહીં તો ત્યાં સુધી આ બસ આ રેન્જ બની છે તમારા માટે. અહીંયા તમે આગળ 50,500 જુઓ છો, 50,000 અને 50,200 300. આજના હાઈ પણ તમારા 440ના છે મેક્સિમમ. એટલે આ લક્ષ્મણ રેખા અહીંયા ખાસ બની રહી છે. એક વખત આ લક્ષ્મણ રેખાને પાર નીકળી જાઓ
તો પછી કંઈક નવા જૂની થાય તેવા ચાન્સીસ બની રહ્યા છે. ઓઆઈ ચેન્જ બતાવી દઈએ ફટાફટ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ચેન્જના હિસાબથી તમે જુઓ છો આજે સારું એડિશન 50,000 પર થયું છે, પણ હવે કન્જંક્શન ઝોન આવી ગયું છે. 50,200, 50,100 આના જો તમે કોલ રાઇટર્સ ખાસા અગ્રેસિવ, અહીંયા 50,000, 50,100 અને 200ના પુટ રાઇટર્સ અગ્રેસિવ છે. આ કન્જંક્શન ઝોન છે, આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો 500 ઉપર ટકવું પડે, તો આ બધા કોલ રાઇટર્સ જે છે તેઓ અહીંયાથી હટતા જોવા મળે અને તો તમને તેજી આવતી જોવા મળે. બાકી અહીંયા સારું છે, જુઓ આ બધા પુટ રાઇટર્સે બહુ જ સરસ પોઝિશન્સ એડ કરી છે. 49, 400, 300, 200 અહીંયા બધી જ જગ્યાએ પુટ રાઇટિંગ થયા છે. 49, 500, 600, 700, 800, 900 અને 50,000. એટલે આમ પુટ રાઇટિંગ થઈ રહ્યું છે. બસ પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે આ કોલ રાઇટર્સ જે આ કન્જંક્શન ઝોન બની ગયું છે તેને પાર નીકળે બેંક નિફ્ટી તો કંઈક વધારે ક્લેરિટી મળે. તો આપણે વાત કરી નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંનેની એક્સપાયરી છે. એક વખત થોડું મૂળ આપણે હવે એના ઉપર ફોકસ લાવીએ અને આપણે બ્રેક પણ લઈ લઈશું. સાથે સાથે બ્રેક બાદ આપણે ચર્ચા કરીશું આપણે એક્સપર્ટ સાથે, સમજીએ કે એક્સપાયરી સ્પેસિફિક શું બધું એક્શન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. આ બધા જ સંકેતોને નજર કરીશું બ્રેક બાદ. તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. જુઓ તમે ભારતીય માર્કેટ છે જ વોલેટાઇલ, હજુ પણ કંઈ ખાસ ક્લેરિટી નથી આવી રહી. ઉપરથી સારી વાત હતી, મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં તેજી એ પણ ધોવાઈ. તો ભારતીય માર્કેટ છે જ રેન્જમાં છે, કંઈ ખાસ મૂવ આવી નથી રહી. આવી સ્થિતિમાં સમજીએ આપણી સાથે લક્ષ્મીશ્રી ઇન્વેस्टमेंटના अंशुल जैन जोड़ा रहा है. अंशुल जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो में. और पिछली बार हमारी बात हुई थी तब से लेकर अब तक काफ़ी उठा पटक जो है भारतीय मार्केट्स ने दिखाई. आज के दिन में ही आप देखिए 15 मिनट की क्या कैंडल्स बन रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में. भारी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने मिल रही है. कैसे देख रहे हैं सर आज की एक्सपायरी को सबसे पहले तो, और अगस्त में क्या ऐसा ही मूड माहौल बना रहेगा, क्योंकि छुट्टियों के दिन भी कुछ आ रहे हैं और साथ ही साथ देखें निफ्टी भी थोड़ा एडवांस में छुट्टियां, पता नहीं क्या एक साथ सारा काम कर लेना है आज. कैसे देख रहे हैं सर आप मार्केट को? नमस्कार यशी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को. देखिए बहुत ज़्यादा ये लगता नहीं ऐसा माहौल कि बहुत ज़्यादा लंबा समय चलेगा. कल इनसाइड बार था, आज प्रोबेबली और इनसाइड बार रहेगा और प्रोबेबली कल और इनसाइड बार पैटर्न की फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि मिनी कॉइल की फॉर्मेशन हो रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. जो मिनी कॉइल जनरली 3 दिन चलता है, आज सेकेंड डे दिख रहा है, कल प्रोबेबली और इनसाइड डे रहेगा और उसके बाद वाले सेशन में हम एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखेंगे. तो आज सेकेंड डे था जहाँ पे हम साइडवेज रहे, कल थर्ड डे रहेगा. इसके बाद एक बड़ी मूव आनी चाहिए और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम ऊपर की साइड चलेंगे. उसकी बड़ी वजह है एफआईआई की इंडेक्स पोजीशनिंग. अगर एफआईआई का इंडेक्स का फ्यूचर पोजीशंस देखें तो 4-4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सट्रीम ओवरलॉन्ग थे वहाँ से गिर के अब हम 63,980 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रह गए हैं. वहीं इंडेक्स की नेट पोजीशन देखें एफआईआई की फ्यूचर प्लस ऑप्शन, अभी हमने फ्यूचर देखा कि 63,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिलाएं तो 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे जो 4 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच में थे. वहां से लेके हम नेगेटिव आ चुके हैं 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड में. तो अगर आज का सेशन, कल का सेशन, ये 2-3 दिन और मिला के हम अगर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कर जाते हैं तो फिर हम लगभग वही जोन में खड़े होंगे जहां पे हम इलेक्शन के रिजल्ट के अगले दिन खड़े थे. 21,800 पे एफआईआई एक्सट्रीम ओवरशॉट थी. नीचे जाने के लिए 150-200 पॉइंट था, ऊपर आने के लिए 1,500 से 2,000 पॉइंट था और वहां से हम 22,000 से 25,000 तक की रैली, 3,000 पॉइंट की रैली डेवलप कर लिए थे. तो अब वहीं उसी जोन में हम धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं और 1-2 दिन मिला के हम ग्रॉस भी ओवरसोल्ड हो जाएंगे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास. वहां से नीचे जाने की जगह कम होगी और ऊपर जाने के लिए 2,000 पॉइंट रहेगा. तो अगर हम 24,000, 23,800 के आसपास सेटल होते हैं तो फिर मान के चलिए कि 25,500 से 26,000 तक की रैली डेवलप होती हुई दिखेगी. तो अगले 5 से 7 सेशन क्रूशल है, मेक और ब्रेक है. प्रोबेबली हम सपोर्ट जोन को होल्ड कर जाएंगे, एफआईआई का डेटा ओवरसोल्ड हो जाएगा और सारी चीजें बुलिशली अलाइंड हो जाएंगी और ऊपर की तरफ हम चलना स्टार्ट कर देंगे. तो अगले 3 से 5 सेशन काफी इंपॉर्टेंट है. मैं ब्रॉडली मार्केट में बुलिश हूँ, अनलेस हम 23,800 के नीचे जाके क्लोजिंग कर दें तब फिर मैं थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा, डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी. तब तक के लिए मैं कॉशियसली बुलिश अप्रोच के साथ चल रहा हूँ विद अ व्यू कि अभी 3 से 5 दिन लगेगा पूरे डेटा को अलाइन होने में ऑन द बुलिश साइड. परफेक्ट. यहाँ से जो है वो कमेंट्री आपकी तरफ से मिल रही है सर. बाकी सारी चीज़ें तो परफेक्ट ही जा रही हैं. अब सबसे पहले तो आपके रिकमेंडेशंस जान लेते हैं और उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं. अंशुल जी.
देखिए, दो स्टॉक रहेगा मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब रिकमेंडेशन में। दोनों कंडीशनल रहेंगे। पहला रहेगा KSCL। KSCL में 1120 रुपए के ऊपर ब्रेक, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को KSCL लॉन्ग दिया था, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क फ्री हो रहे थे, तो 50% प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। बाकी 50% हमने कहा है कि थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करें, बड़ा प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। अब इस स्टॉक में 1125 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, तो 1125 KSCL जैसे क्रॉस करता है आपको लॉन्ग करना चाहिए। एबो 1125 कंडीशनल बाई है, 1125 निकलता है तो लॉन्ग कीजिए। 1090 का स्टॉप लॉस लगाइए और इमीडिएट टारगेट 1200 रुपए बनेगा। 1200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 1450 से 1500 जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में रहेगा रोजारी बायोटेक। इस स्टॉक में भी पैटर्न बना हुआ है, ऑलमोस्ट 57 वीक्स का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन कर रहा है। अब फ्रेश मोमेंटम के लिए स्टॉक को 920 रुपए क्रॉस करना मैंडेटरी है, तो इसमें भी कंडीशनल बाई रहेगा। 920 निकलते से स्टॉक को बाई करना है। 890 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 980 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 980 पे फिबोनाची एक्सटेंशन रेजिस्टेंस है, इसलिए 980 का टारगेट दे रहा हूँ। वैसे 980 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है स्टॉक, तो फिर ये स्टॉक 1150-1200 रुपए तक जा सकता है। तो दोनों ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में भी चलेंगे, और अगर आप 3 से 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो बड़े टारगेट भी दे सकते हैं। तो बड़े टार्गेट्स भी यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। तो રોઝરી બાયોટેક અમદાવાદની જ કંપની છે, જેને ધ્યાન પર રાખો તમે અહીંયાથી ખાસ, અને કાવેરી સીડ્સ બંનેના ટાર્ગેટ સ્ટોપ લોસ તમારા સ્ક્રીન પર નજર રાખવાની રહેશે। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोल इंडिया लेके आते हैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, और स्पेसिफिकली आप देखें तो बाय रेटिंग आई है जेफरीज की ओर से, और 600 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दे दिए हैं। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं जेफरीज को। बोल रहे हैं कि देश का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ देने वाली कंपनी बन सकती है, और ICICI डायरेक्ट ने भी एक बाय कॉल दिया है। तो बजिंग है, डबल बाय रेटिंग आती हुई हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं आप कोल इंडिया को? देखिए, कोल इंडिया में कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। 43 डेज का पैटर्न था, वहां से एक बार शेकआउट भी किया है। ब्रेकआउट देने के बाद लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस काटे और वापस से फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो शेकआउट के बाद ब्रेकआउट है, सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट जनरली स्ट्रांग होती है। आज की गाइडेंस थोड़ी सी नेगेटिव है। ऑन द डिप्स 520 कहीं भी मिलता है तो लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए। 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 570 से 580 रुपए इमीडिएट टारगेट मिल सकता है ऑन दी अपसाइड। अब इमीडिएट से मेरा मतलब है कि 2 से 3 हफ्ते आपका समय जाएगा 570 का लेवल आने में। ઓકે, સો કોલ ઇન્ડિયા પર ફોકસ આ રીતે બનતું જોવા મળી રહ્યું છે। આજે તો કંઈક ઘટાડો છે, પણ ઓવરઓલ બાય રેટિંગ તમને આવતા જોવા મળેલા છે, તો નજર રાખવાની રહેશે। अंशुल जी, एक और स्टॉक आज फोकस में था, वो है अपोलो टायर्स, बिकॉज नंबर्स के बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखी है, और 1.5% की ऑलमोस्ट सेलिंग आती हुई देखने मिली, और नंबर्स भी इतने कुछ अट्रैक्टिव थे नहीं। तो क्या चार्ट्स पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं? आप कैसे देख रहे हैं अपोलो टायर्स को? देखिए, अपोलो टायर्स में प्रॉब्लम ये है कि इसमें 108 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट 3 दिन तक होल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है। अब जो ब्रेकआउट पे जिन्होंने लॉन्ग किए हैं उनके स्टॉप लॉसेस हैं 501 रुपए पे। जैसे ये स्टॉक 501 रुपए के नीचे जाएगा, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मंदी आती हुई दिखेगी। इमीडिएटली नीचे 468 से लेके 438 तक आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए। वैसे मेरी सलाह रहेगी कि आप इमीडिएट एग्जिट कर दें, तो ये जो 12 रुपए हैं वो भी आपके बच जाएंगे, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 500 का अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस की वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा रहा है, नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं सर। ऑब्वियसली स्टोरी ऑफ द डे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी हम मेहनत मशक्क़त करते हैं, काफ़ी अच्छी आमदनी हुई है एक्सचेंज की इस बार। देखें आप, 9% स्टॉक ऊपर है, इनका प्रॉफिट 180% बढ़ गया। इनकी जो आय है वो 180% बढ़ गई, और प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मल्टीपल टर्म्स में बढ़ा है, और मार्जिन देखें तो 47% के हो गए हैं। एक्सचेंजेस की काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रही है जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। BSE को कैसे देख रहे हैं सर आप, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स और स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा
रिस्पॉन्स देखने मिला है और अपने हाइज से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो गया था। जब से ये मार्जिन वगैरह की बात हुई थी, सेबी कंसल्टेशन पेपर आने वाला है, ये सब बातें हुई थी, टैक्स वगैरह की बातें हुई थी, तब से इस स्टॉक की पिटाई हुई थी सर। देखिए, स्टॉक में पिटाई होना स्टार्ट हुई थी जब इनका जो प्रीवियस वो टैक्स वाला जो बकाया नोटिस आया था और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट होने की बात थी। लेकिन वो सारी चीज़ें नलीफाई होते हुए दिखी हैं, एक्सचेंज ने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी डेवलप हो सकती है फंडामेंटली, बट टेक्निकली देखें तो बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था दिसंबर 2023 में, उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है स्टॉक। अगर ये स्टॉक 2730 के ऊपर जाके सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो टेक्निकल ब्रेकआउट होगा, फिर 3200 तक ये स्टॉक रैली करेगा। लेकिन ये ब्रेकआउट मेरे को अगले 4-6 महीने आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाइंग क्लाइमैक्स होने के बाद ये 7 महीना ही हुआ है। जनरली 2 से 2-2.5 साल तो आराम से लग जाते हैं स्टॉक को नया बेस बनाने में, और यहाँ पे केवल 7 महीना गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ टेक्निकली, लेकिन अगर 2730 के ऊपर क्लोज करता है तब फिर मैं ब्रेकआउट प्ले करना पसंद करूंगा। फिलहाल मेरे फंडामेंटल वॉच लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन टेक्निकली ये साइडवेज है, तो ट्रेडर्स के लिए कम्प्लीटली अवॉइड है। इन्वेस्टर्स के लिए भी 2-2.5 साल एक डेड स्टॉक में रहना कोई मतलब नहीं है। तो मोमेंटम आने का वेट कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अवॉइड की लिस्ट है, अवॉइड की सलाह है। ક્લિયરલી અવોઇડનો વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે। ખાસ બીએસઈ જ્યારે વધારે મૂવમેન્ટ આવી જ ચૂકી છે સ્ટોકમાં, તો અત્યારે ફિલહાલ થોડું અવોઇડનો વ્યૂ બનતો આપણને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે। आगे बढ़ते हैं सर। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर मेरी नज़र थी। पहले तो सेक्टर्स की हम बात करें, क्योंकि आज जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी हमने देखी है, आईटी स्टॉक्स की हालत आज ख़राब थी सर। निफ्टी आईटी आप देखें तो ऑलमोस्ट 2% कम हुआ है, और उसमें भी अगर निफ्टी के टॉप लूजर्स हम देखेंगे तो ऑब्वियसली यही सारे स्टॉक्स हमें देखने मिलेंगे। इन्फोसिस हैं, टीसीएस हैं, आज एलटीआई माइंट्री टॉप लूज़र है, 4.25% गिर गया सर। और साथ ही साथ इन्फोसिस की भी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है, 3% इनफैक्ट स्टॉक कम हो गया है। सो आईटी स्टॉक्स ने आज साथ नहीं दिया है निफ्टी का। कैसे देखेंगे इस निफ्टी आईटी को, और साथ ही साथ एलटीआई माइंट्री और इन्फोसिस की आज की सेलिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा सर। देखिए, निफ्टी आईटी में करेक्शन है, बहुत कोई ऐसा डाउनफॉल नहीं है। अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स चला था, अच्छा खासा चला था, ऑलमोस्ट 32% चला था 29 दिनों में। वहां से थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। 2 दिन में 20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा था। हाई लाइकली है कि इंडेक्स जो है 50 डे मूविंग एवरेज अपना 37,700 पे टेस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 600 पॉइंट नीचे है, तो उतना फुल बैक आना लाजमी था, क्योंकि 32% नॉन स्टॉप चला था। तो अगर 50% भी करेक्शन आता है तो एक 7-8% की डाउन साइड आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं इसको पुल बैक की तरह मान रहा हूँ। प्रीवियस स्विंग हाई रीटेस्ट हो रहा है। 1 से 2 हफ्ते में यहाँ बेस बन के आईटी वापस से लीड करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में शायद आईटी लीडर के तौर पे आए, और सेकंड बेस्ट सेक्टर जो चलेगा वो बैंकिंग रहेगा। तो इन सारे स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की सलाह ही रहेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस आपने टारगेट्स डन करके नीचे आ रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट कर सकता है 1680 तक, बट 1680 से नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है, तो उस जोन में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स यहाँ पर देखने मिलेगा। आईटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज देखने मिल रहे हैं, ज़्यादा सेलिंग आती हुई देखने मिल रही है। अच्छा, ये निफ्टी में तो सर हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, डेज लो बना रहे हैं हम। आपने वैसे कमेंट्री में बात तो की थी, लेकिन एक प्राइमरी सपोर्ट था 24,100 का जो तोड़ रहे हैं हम। अब एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है, देखो अनवाइंडिंग वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन आज अगर 24,050 के नज़दीक की क्लोज हो गई तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सर, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था 24,100, 2450 जिसके नज़दीक आ चुके हैं हम अब। अंशुल जी, देखिए, आज निफ्टी की एक्सपायरी है और अब आखिरी आधा घंटे में एक्सपायरी का प्रेशर हावी होने लगा है, तो मैं आधा घंटे का कोई व्यू एज सच लेना नहीं पसंद करूंगा। हालांकि 24,000, 23,800 ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक ये होल्ड हो रही है मैं ऑन द डिप्स बाइंग ही देख रहा हूँ। मैं 23,800 टूटने के बाद भले बेरिश हो जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं उसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। आखिरी आधा घंटा निकल जाने दीजिए, बल्कि अब 6 मिनट की ट्रेडिंग रह गई है, तो वो एवरेज जो वीवैप क्लोजिंग आती है वो ऊपर ही आएगी, एडजस्टेड क्लोजिंग, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्राइसिंग पे कोई असर नहीं आ रहा है।
तो मतलब कहने का क्लियर मतलब है कि मैं ये आधा घंटे की फॉल को किसी तरीके से रीड नहीं कर रहा हूँ। एवरेज में ये ऊपर क्लोजिंग आएगी, 24,000 के नीचे आता है तो मैं हल्का सा बेरिश होऊंगा, 23,800 के नीचे मैं ट्रेंड रिवर्सल मान लूंगा। तो फिलहाल मेरे सपोर्ट जोन के अंदर आ रहा है, मैं बाय ऑन डिप्स ही देख रहा हूँ। क्लियरली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी अपनानी चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर ज़रूर बन रहा है, लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो सो फार सो गुड। बैंक निफ्टी भी अब देखिए दिन की शुरुआत जहां से हमने की थी उसी लेवल पे आता हुआ देखने मिल रहा है, लेकिन बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी क्लोजिंग के बाद। मिड कैप स्मॉल कैप की भी हालत थोड़ी सी खराब ही देखने मिल रही है, तो इनके ऊपर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के टॉप लूजर्स में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक सामने आ रहा है और वो है ग्रासिम। आज ग्रासिम में 3.5% की सेलिंग आज हमने देखने मिली है, और ऑब्वियसली ये जो प्रेशर बन रहा है पर्टिकुलरली स्टॉक पे, एक तो होल्डिंग कंपनी है, इतनी मूव आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रही है। यहाँ पर ग्रासिम को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा सर। अगर होल्डिंग कंपनी में सेलिंग आती है तो ये थोड़ा टेंशन जरूर दिलाता है। देखिए LTI माइंड, सॉरी एक बार स्टॉक का नाम रिपीट सर। ग्रासिम 2541 पे चल रहा है, 2541 पे, और ऑलमोस्ट 3.5% डाउन हो गया सर आज। देखिए सीमेंट स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए थे और ब्रेकआउट फेल हुए हैं। स्पेशली मुझे याद है ACC में 2800 रुपए में रिकमेंड कर रहा था क्लाइंट्स को 2750 के स्टॉप लॉस के साथ, और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होने के बाद बहुत तेजी से वो स्टॉक भी नीचे आया है 2400 की रेंज तक। सिमिलर चीज ग्रासिम में है, ब्रेकआउट आया था 2490 तक, 2490 पे ब्रेकआउट था जहां से स्टॉक ने 2800 तक की रैली की थी। उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है। तो सीमेंट एज ए स्पेस में थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैप्ड है, ओवर पार्टिसिपेशन रिटेल का हो गया था, उनको शेक आउट किया जा रहा है ऑन द पुल बैक्स। तो मेजर सपोर्ट जब टेस्ट होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के, तब सीमेंट स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन हम लोग अपने क्लाइंट्स को देंगे। फिलहाल ग्रासिम की स्पेसिफिकली बात करें तो 2440 पे मेजर सपोर्ट है, यानी यहाँ से 100 रुपए और नीचे स्टॉक आ सकता है। वहां पे एक बार रिकंसिडर कर लीजिएगा कि किसी एक्सपर्ट से कि अगर सपोर्ट लेता है या रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बाइंग की सलाह रहेगी, अगर नहीं बनती है तो थोड़ा सा और डाउनसाइड आ सकता है, लेकिन वहां पे फेयरली प्राइस्ड हो जाएगा तो फंडामेंटली स्टॉक काफी सस्ता हो जाएगा। टेक्निकली बाउंस बैक या मोमेंटम बनने के लिए कोई एविडेंस या रिजेक्शन चाहिए होगा, वो चेक करना होगा 2440 के आसपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उस दिन डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए लग रहा है कि 2440 ये एक बार टेस्ट कर सकता है। 2440 आने वाले दिनों में हो सकते हैं लेवल्स, ध्यान रखेंगे। सर नेक्स्ट स्टॉक का BASF पे नजर डालिए, क्योंकि नंबर्स का रिएक्शन स्टॉक दे रहा है आज, और नंबर्स काफी ब्रिलियंट आए और 12% स्टॉक का नए रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ देखने मिला। 36% मुनाफा बढ़ गया, आई जो उनकी है वो 18% बढ़ गई। काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड है स्टॉक सर आज BASF। देखिए BASF में एक ब्रेकआउट आया था 3900 ऑड लेवल्स पे, वहां से 6 महीने में स्टॉक वर्टिकली ब्रेकआउट एग्जैक्टली मई 2024 में आया था। वहां से 3 महीने में स्टॉक वर्टिकली चलते हुए 7600 रुपए आ चुका है। ये पूरा जो ब्रेकआउट था 143 वीक्स का ब्रेकआउट था, तो अब ये अपने टारगेट्स डन कर चुका है। शॉर्ट टर्म में ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक है, रिटेल पार्टिसिपेंट हाईएस्ट पे है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। आपको बाइंग क्लाइमैक्स के दौरान वर्टिकली इस तरीके के मूव दिखती हैं जहाँ पे निकल जाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि करेक्शन आता है तो इनिशियली 20% बहुत तेजी से नीचे में करेक्ट होते हैं स्टॉक्स। अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 6900 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, लेकिन वो भी 400-500 पॉइंट नीचे हो जाता है। तो सलाह जो ज़्यादा अच्छी रहेगी वो ये है कि आप 50% एग्जिट कर लीजिए, 50% पे 6900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इन केस अगर आपको 8200 मिल जाता है तो आप 100% प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइएगा। ઓકે સો આ લેવલ્સ ખાસ આપણે ધ્યાન પર રાખવાના રહેશે। હવે ભારતીય માર્કેટ્સ ક્લોઝ તરફ પણ આગળ વધી રહ્યા છે। એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે, બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ આપણે ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ અને ત્યારબાદ આગળના સેટઅપની ચર્ચા કરીશું। બ્રેક બાદ બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત। ભારતીય માર્કેટ્સનું ક્લોઝ જોઈ લો, પ્રોવિઝનલ ક્લોઝ છે અત્યારે 24,100 પર 197 પોઈન્ટનો ઘટાડો આજે નિફ્ટીએ બતાવ્યો। પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, 24,340ના તમારા હાઈ હતા, ત્યાંથી છેક નીચે આવ્યા। એક સમયે બહુ સરસ તેજી બતાવતા હતા, એમાં ડેઝ લો પર ક્લોઝ થયું।
હવે 24,080ના આજના ડેઝ લો હતા અને ત્યાંથી 24,100 પર એડજસ્ટેડ એક વખત સેટલ થઈ જવા દઈએ. બેંક નિફ્ટીનું ક્લોઝ તમે જુઓ, અહીંયા પણ તમે જે છે તે ખાસ 50,113 પર મામૂલી 6 પોઈન્ટનો ઘટાડો જુઓ છો. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ જુઓ 5% અને 0.5% આસપાસનો થોડો ઘટાડો તમને સ્મોલ કેપમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અને પ્રોબ્લેમ છે વિક્સમાં. વિક્સ આજે વધીને ગયો, આઈડિયલી ઘટીને જવાની જરૂર હતી 16% આસપાસ, કેમ કે ઇવેન્ટનું ઓવરહેંગ પૂરું થઈ ગયું. પણ ખબર નહીં આજે વિક્સમાં પણ તમને મજબૂતી આવતી જોવા મળી છે. थोड़ा समझिए भारतीय मार्केट्स ना क्लोज है. अंशुल आपके पास आते हैं, निफ्टी आपने वैसे कमेंट्री कर दी है, बैंक निफ्टी पर आते हैं. 50,113 एडजस्ट हो जाने दीजिए, लेकिन फिर भी एकदम फ्लैट लेवल की क्लोज हुई है. मिड कैप स्मॉल कैप में भी उपले स्तरों से आपने देखा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही आती हुई देखने मिली है. सो एक तौर पर आज की गुरुवार की क्लोज इतनी कुछ खास एनकरेजिंग नहीं है हमारे लिए. आप कैसे देख रहे हैं सर? निफ्टी की हमारी बात हो चुकी है, सो बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप पर फोकस करते हैं. देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा आखिरी आधा घंटे के प्राइस एक्शन को रीड नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सपायरी का प्रेशर था. बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इनसाइड बार के साथ हम क्लोज करेंगे. आज सेकंड सेशन है, हम इनसाइड बार के साथ क्लोज किए हैं. एक से ज़्यादा जब इनसाइड बार होता है तो मिनी कॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, और मिनी कॉइल जनरली 3 to 5 डेज का होता है. तो आज सेकेंड डे रहा है. कल का सेशन में भी साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इसके बाद प्रोबेबली मंडे के सेशन में हम जो है बड़ा मूव देते हुए दिखेंगे. और अगर 4th डे भी ब्रेकआउट नहीं आता है तो जनरली 5th डे तक इनसाइड बार ये मिनी कॉइल पैटर्न जाता है. तो अगर 3 दिन में कंप्लीट करके चौथे दिन ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर 5 दिन तक कंटिन्यू होके 6वें दिन ब्रेकआउट आता है. तो मोस्ट लाइकली कल भी इनसाइड बार और साइडवेज काइंड ऑफ सेशन रहेगा. प्रोबेबली मंडे को हम बड़ा मूव देखेंगे. ओके, सो मंडे को फिर बड़ा मूव आता हुआ देखने मिल सकता है. उसके पहले की आज की क्लोज जिस पे हमारी नज़र थी. सर, स्टॉक स्पेसिफिक आज की बात करें उससे पहले जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, मोस्टली सारे सेक्टर्स में सेलिंग थी, लेकिन फार्मा आज बजिंग था सर. और हेडलाइंस में भी हमने बात की थी, फार्मा स्टॉक्स आज काफ़ी ज़्यादा कुछ लीडिंग काउंटर्स, जैसे कि आप देख लीजिए, आप बहुत सारे स्टॉक्स जो सिप्ला वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लूपिन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमने देखी है. सो निफ्टी फार्मा थोड़ा म्यूटेड ज़रूर था, लेकिन फिर भी डिफेंसिव के तौर पे तेज़ी थी. लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने मिला है. कोई फार्मा स्टॉक्स आपको पसंद है अभी? देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा. सिप्ला हमने अपने क्लाइंट्स को और मीडिया प्लेटफॉर्म पे कल बाय दिया था, आज टारगेट हो गया है. और सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमने लूपिन रिकमेंड किया है, क्योंकि लूपिन में फ्रेश ब्रेकआउट आया है. लूपिन में हमको तेजी दिख रही है. यहाँ पे एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट है. और ओवरऑल बड़े स्ट्रक्चर पे देखें तो 99 दिन का फ्लैट बेस ब्रेकआउट था, जिसके ऊपर 11 दिन का वापस बेस बना था. तो बेस ऑन बेस पैटर्न से ये मूव आया है. करीब 2200 का टारगेट है जो अभी अचीव नहीं हुआ है. तो यहाँ से 150 रुपये और अपसाइड बची हुई है. करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कर सकते हैं विद अ सेट टारगेट ऑफ 2200. स्टॉप लॉस आज का लो जो है 2003 का है, इससे 3 रुपये का बफर दे लीजिए. 1999 का अगर क्लोजिंग स्टॉप लॉस से लॉन्ग करते हैं तो 2200 रुपये मिलने के काफ़ी हाई प्रोबेबल टारगेट्स हैं, और ये टारगेट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में अचीव हो जाएंगे. ओके, इंटरेस्टिंग लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं. लूपिन पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा बजिंग आज देखने मिला है. नेक्स्ट स्टॉक सर, आजकल सब लोग इसकी चर्चा करते हैं, नाम है इसका सुज़लॉन. अब गुजरात बेस्ड ही कंपनी है, रिन्यूएबल एक ऐसा सेक्टर कि जहाँ पे एक जिसे बोलते हैं कि वैसे भी ग्रीन शूट सरकार भी इंटरेस्टेड है, लेकिन इस कंपनी की स्टोरी टर्न अराउंड स्टोरी है. और इसका मार्केट कैप आप देखें तो अब 1 लाख करोड़ के नज़दीक आ पहुंचा है, और ऑलमोस्ट 99,500 करोड़ का मार्केट कैप आज ही हो गया. 4.8 करोड़ शेयर्स की वॉल्यूम थी आज, और 72 रुपये की कीमत पर ऑलमोस्ट जो है वो 346 करोड़ के ट्रांजैक्शंस भी देखने मिले. फिर से एक बार 5% की तेज़ी थी. ऐसे स्टॉक्स के साथ हम भी आइडियली थोड़ा सा डिस्कशन से दूर रहते हैं, लेकिन अब ऐसी स्टोरी बन चुका है सुज़लॉन जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. अंशुल, देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं. कल ये सुज़लॉन 1 या 2 दिन पहले हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी के लिए रिकमेंड किया हुआ है. तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है. हालांकि रिस्क फ्री हो रहे थे तो हमने पार्शियल बुकिंग की सलाह सुबह दी थी. बट ये स्टॉक जाके अपर सर्किट में क्लोज हुआ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 90 रुपए तक के टारगेट्स जाएंगे. हमने अपने क्लाइंट्स के साथ जो वेबिनार करते हैं उसमें और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक 56 रुपीज़ पे जब ब्रेकआउट आया था तब रिकमेंड किया था. पहला टारगेट 64 था, दूसरा 74 था, तीसरा 90 था. 2 टारगेट्स ऑलमोस्ट, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है.
बट हमें ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 हफ्ते अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 90 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर करंट जोन में आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो 25% क्वांटिटी, जो नॉर्मल क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से 25% क्वांटिटी आप लॉन्ग कर सकते हैं। 64 का अपडेटेड क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और 90 रुपए तक ऊपर में जा सकता है। तो हम यहाँ पे ना सिर्फ ओल्ड बाई दे रहे हैं बल्कि फ्रेश बाई भी रिकमेंड कर रहे हैं विद एन अपडेटेड स्टॉप लॉस ऑफ 64। 90 रुपए हमको 2 से 3 हफ्ते में जाता हुआ दिख रहा है। एग्रेसिव बेट है, एग्रेसिव ट्रेड है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स को ही इसको करना चाहिए। और आप यूजुअली अगर जो भी क्वांटिटी करते हैं उसको 25% क्वांटिटी ही रखते हुए करना चाहिए क्योंकि हाईली एग्रेसिव बेट है। अग्रेसिव तो हैं, ये बात तो ज़रूर हमें देखने मिलेगी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में सुज़लॉन ने भी काफ़ी अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी ज़रूर हमें दिखाई है। आते हैं आगे। नेक्स्ट स्टॉक सर आपके पास लेकर आना चाहूँगा, मामाअर्थ यानी कि होनासा कंज्यूमर। इस स्टॉक ने भी सरप्राइज़ किया है। जैसे जोमेटो हमने देखा था, पीबी फिनटेक हमने देखा था, वैसे ही स्टोरी बनता जा रहा है। और इवन नायका, अब होनासा कंज्यूमर में भी आज 9% की तेजी हमने देखी है। बहुत ही ब्रिलियंट मूव सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, होनासा में अगर देखें तो परफेक्ट आईपीओ बेस ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन गया था। अगर ये यहाँ से 5-7 रुपए और ऊपर जाके क्लोज कर देता तो मैं कह देता कि ये ब्रेकआउट आ चुका है। हल्का सा मिसिंग रह गया है आज के सेशन में, प्रोबेबली कल या परसों में ब्रेकआउट आ जाएगा। ऑलमोस्ट 159 डेज का आईपीओ बेस बना है, परफेक्ट कपनैडल पैटर्न है। 500-505 इसकी रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो इसमें बड़ा आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा। आप सिमिलर स्टॉक देखिए, बिकाजी में बड़ा बेस ब्रेकआउट आया, वहां से स्टॉक 40% चल चुका है, तो कुछ उस तरीके का मूव आ सकता है। 505 का लेवल निकलता है तो 800 सवा 800 तक के टारगेट होनासा में बनते हुए दिखेंगे। दूसरा स्टॉक आपने नायका डिस्कस किया, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसमें आईपीओ जिस दिन से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूअसली डाउन मूव था। मई में बॉटम बनाया था लास्ट ईयर, वहां से हल्का सा अपसाइड में, मतलब जिसको हम फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बोलेंगे वो है। तो मैं नायका को तो इग्नोर करने की सलाह दूंगा, लेकिन होनासा जरूर 505 निकलता है तो बड़ा आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। 800-825 तक के टारगेट मिल सकते हैं 3 महीने अगर कोई होल्ड करता है तो। कंडीशनल बाई है, 505 के ऊपर ही बाई करना है जब सस्टेन करने लगे। કન્ડિશનલ બાય અહીંયાથી જોવા મળી રહ્યું છે। નજર રાખીએ નાયકા, હોનાસા બધાની આપણે વાત કરી છે, फोकस जरूर राखीશું। पर एक स्टॉक सर आज जिसने सरप्राइज किया वो था यहाँ पर लेमन ट्री। नंबर्स वैसे सरप्राइज इतना भी नहीं था क्योंकि नंबर्स खराब ही आए थे, लेकिन रिएक्शन थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखी है। बहुत ही सारे लोकेशंस पर उनके होटल वगैरह पॉपअप हो रहे हैं, रिजॉर्ट पॉपअप हो रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में कैपिटल स्पेंडिंग ज़्यादा है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनाफा थोड़ा कम हो गया, लेकिन रिएक्शन थोड़ा शार्प था सर आज लेमन ट्री होटल। देखिए, लेमन ट्री में भी वही दिक्कत थी, एक्सेसिव रिटेल ओनरशिप थी और थोड़ा सा खराब न्यूज आया तो एकदम से फ्लश लॉन्ग्स जो है फ्लश करने लगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये एक्सेसिव रिएक्शन दिख रहा है। मुझे लगता नहीं है कि रिएक्शन खत्म हो गया है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसका 121 है, जो प्रोबेबली कल शायद हम खुलते ही समय इसको तोड़ दें। अगर 121 मिड डे में हम होल्ड कर लेते हैं तो थोड़ी सी बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन अगर 121 होल्ड नहीं होता है तो फिर 107 रुपए पे मेजर सपोर्ट है और मुझे स्टॉक 107 रुपए आता हुआ दिख रहा है लेमन ट्री। आई वुड बी ए सेलर ऑन द स्टॉक। मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं करंट मार्केट प्राइस से भी सेल की ही सलाह दूंगा। मुझे नहीं लगता कि 121 होल्ड होगा, ये 107 रुपए आते हुए मुझे दिख रहा है। क्लियरली 107 रुपया अभी आ सकता है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेशंस और यहाँ पर रहेगी। सर नेक्स्ट स्टॉक आईटीडी सीमेंटेशन पर नजर डालिए क्योंकि यहाँ पर भी नंबर्स का रिएक्शन था और बहुत ही बेहतरीन 14% की एक टाइम पे तेजी हमने देखी और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने मिली है। नंबर्स काफ़ी ब्रिलियंट है। सो ओवरऑल और सेक्टर भी आप देखें तो इसमें गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है आईटीडी सीमेंटेशन। अंशुल देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में जैसे मैंने डिस्कस किया कि लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स में ट्रैप बने थे और तीनों चारों स्टॉक ट्रैप बना के नीचे आए हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है और 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे गया था, स्टॉक प्रोटेक्ट किया है, आज गैप के साथ वापस आया है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ वापस आया है और अच्छे रिजल्ट की वजह से वापस आया है। तो हाई लाइकली है कि अगले 3 महीने में स्टॉक अगर आपको 750 से 800 रुपए मिले तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए।
मेजर स्टॉप लॉस कल का लो होना चाहिए जो कि 465 के आसपास है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस बड़ा है तो आज का लो 497 आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप 465 का ક્લોઝિંગ બેસિસ પર લીજીએ. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. આઈટીડી સિમેન્ટેશન શાર્પ આજના દિવસે રિએક્શન આવ્યું અને ત્યારબાદ અત્યારે फिलहाल આપણે चर्चा करी. सर नेक्स्ट स्टॉक रूट मोबाइल पर नजर डालिए. बहुत दिनों के बाद ये रडार पर आया है. 1652 के आज के इंट्राडे हाइज बनते हुए देखने मिले और 6.5% की ऑड तेजी एक टाइम पे हमें देखने मिली थी. काफी अच्छा रिएक्शन है रूट मोबाइल. कैसे देख रहे हैं सर आप इसके चार्ट्स? देखिए ये चीज जैसे हम पुल बैक पे जनरली बाई करते हैं, ये फॉलिंग स्टॉक है और 20 और 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ पुल बैक दे रहा है, तो ये सेल ऑन रैलीज वाला स्टॉक है. एग्जैक्टली उस रैली पॉइंट पे आ चुका है जहां से आप माल बेचना शुरू कर सकते हैं. 1677 से लेके 1699 ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है. यहाँ से सेलिंग रिज्यूम होनी चाहिए, तो वहां तक जा रहा है, वहां पे अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कीजिए और डाउन साइड का वेट कीजिए. प्रोबेबली जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव बनेगी तो ये स्टॉक 1380 स्विंग लो टेस्ट करता हुआ दिखेगा. तो मैं सेल ऑन रैलीज की सलाह दे रहा हूँ. 1677 1699 इसके बीच में कहीं भी रिजेक्शन कैंडल बनती है लो डिग्री चार्ट्स पे तो इमीडिएटली लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए. ઓકે, તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ રૂટ મોબાઈલ માટે બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. નજર રાખવાની રહેશે. ओके सर, नेक्स्ट स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग RVNL पर हम नज़र डालना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप और उसके बाद अब गवर्नमेंट स्टॉक्स की पिटाई होना शुरू हुआ है. सरकारी स्टॉक्स में अब RVNL में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने मिली. आज 4.5% डाउन था, अब आ चुका है 531 का आज का लो बनाया इस स्टॉक ने और ऑलमोस्ट वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखा, लेकिन हालत ख़राब है और रनअप भी काफ़ी ज़्यादा हमने रेलवे स्टॉक्स में देखा ही था. अब जाके ब्रेक लगा है. कोई स्टेशन आया है यहाँ पे या आप देख रहे हैं कि परमानेंट थोड़े टाइम तक ये यार्ड में जा रहा है RVNL सर? देखिए यशी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये यार्ड में जा रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्टॉक्स यार्ड के बाद जो खाई है उसमें जाके गिर जाएंगे, क्योंकि ऑफलेट आप जब भी देखिए कि किसी भी सेक्टर की जब बड़ी रैली चलती है, टॉप आउट होता है, तो उसके बाद 50% चांस होता है कि स्टॉक 80% करेक्ट है और 80% चांस होता है कि स्टॉक अपने हाई से 50% करेक्ट हो. स्टॉक अभी अपने हाई से 15-20% ही नीचे है, तो अभी 30% की और डाउनसाइड यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है. मैं कंप्लीटली लगभग मुझे याद है बजट के दिन भी आपके साथ, बजट के एक दिन आगे पीछे भी जब आपके साथ में लाइव था, मैं रिकमेंड कर रहा था कि आप सारे PSU स्पेशली रेलवे और डिफेंस के PSU से इमीडिएटली एग्जिट कीजिए. बजट के बाद अच्छी न्यूज भी आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग में सेलिंग आएगी, और अगर गलती से कोई खराब न्यूज आ गई तो बहुत तेजी से लॉन्ग्स फ्लश होंगे, और दोनों ही चीज होती हुई दिख रही है. तो PSU स्टॉक्स स्पेशली जिसमें रेलवे और आपके डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनसे आज के प्राइस में भी अगर आप एग्जिट कर लेते हैं तो 3 महीने बाद ये सारे स्टॉक्स आपको 30% नीचे मिल जाएंगे. वहां भी मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्रीवियस विनर्स कभी नेक्स्ट रैली में वापस से नहीं चलते हैं. नई रैली जब डेवलप होगी तो नए सेक्टर्स डेवलप होंगे. इनिशियल साइन फर्टिलाइजर और पेपर स्टॉक्स दिखा रहे हैं अगली रैली में बड़े विनर्स बनने की, बट वो जब कंफर्म होगा तब हम बाई कॉल्स इनिशिएट करेंगे. बट प्राइमा फेसी पेपर और फर्टिलाइजर स्टॉक्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि अगली रैली में बड़े विनर्स हो सकते हैं. प्रीवियस रैली में डिफेंस और रेलवे और PSU काउंटर्स ये बड़े विनर्स थे. अगली रैली में सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे, इन्हीं से पैसा बाहर जाएगा और पेपर और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फ्लो होगा. तो इन काउंटर्स में सेलिंग मिलेगी और उन काउंटर्स में वही पैसा फ्लो के बाइंग मिलेगी. तो इमीडिएटली एग्जिट की सलाह रहेगी मेरी तरफ से. एग्जिट. अब तो रेलवे स्टॉक्स, सरकारी स्टॉक्स की हालत खराब हो रही है, तो इसको हमें फोकस में रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं सर. नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो है गोदरेज कंज्यूमर. बिकॉज यहाँ पर भी नंबर्स का रिएक्शन देखने मिला. 4 से 5% प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी एक टाइम पे. नंबर्स थोड़े से उतने खराब भी नहीं आए. मुनाफा देखें आप तो ठीक है, लेकिन उनकी रेवेन्यूज़ जो हैं वो थोड़ी स्लो हुई हैं, और पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ से थोड़ा स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस आने लगी हैं. इस वजह से स्टॉक की पिटाई आज थोड़ी ज़्यादा हुई. गोदरेज कंज्यूमर, अंशुल. देखिए गोदरेज कंज्यूमर में 121 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1140 रुपए में जनवरी 2024 में.
वहां से लेके स्टॉक ने अच्छी रैली दी है, लेकिन इस जो पूरे ब्रेकआउट है इसका टारगेट 1700 रुपए के आसपास बनता है। 1450 के आसपास हम खड़े हैं, तो लगभग 200-250 रुपए की अपसाइड यहाँ पे बची हुई है। रिस्क रिवॉर्ड अब उतना फेवरेबल नहीं रह गया है, तो आपको इन्वेस्टर के तौर पे ट्रेड करने की जगह ट्रेडर की तरह स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं, और बाय द वे ब्रेकआउट अगर आता है फ्रेश 1510 के ऊपर तो भी लॉन्ग करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपका स्टॉप लॉस 1360 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे होगा। 1520 पे ब्रेकआउट मिलता है तो भी ये स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज होकर 1420 रुपए आ जाएगा। दोनों केस में 1700-1750 रुपए ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। तो आगे और एक एक्शन देखने ज़रूर मिल सकता है। 1750 तक का नज़र हमारी रहेगी यहाँ पर। सर, मेटल स्टॉक्स की बात कर लें, क्योंकि आज जिंदाल को एक्शन में था नोवेलिस की वजह से, और उसके बाद निफ्टी मेटल पे भी हमारी नज़र थी और ऑलमोस्ट 0.25% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने मिली है। निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी मेटल स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा योगदान हमें देखने मिला था। और हिंदाल्को में पर्टिकुलरली चार्ट्स की बात करना चाहूँगा, क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स में थोड़ी सी एक स्लो डाउन जैसी एक एक्शन थी, उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आता दिखा है। सर देखिए, हिंडाल्को में 109 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 631 के लेवल पे, और वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट गैप के साथ फेल कर रहा है। तो स्टॉक मेरे को थोड़ा सा डरा रहा है। अगर इस स्टॉक में मेजर सपोर्ट जोन 590 से 605 की है, अगर ये होल्ड नहीं होती है तो फिर स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव आती हुई दिखेगी 490 रुपीज तक। तो 590 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। ઓકે, સો આ લેવલ જોવા મળે તો પછી એક્ઝિટ કરવાની સલામતી જોવા મળી રહી છે આ હિન્દાલ્કોની વાત કરીએ। નિફ્ટી મેટલ इंडेक्स पर एक बार नजर डालिए सर, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा सा मूव लाने की कोशिश, एक बार पिटाई तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है इंडेक्स की, लेकिन रिसेंटली थोड़ा एक मूव आई थी तेज़ी की और अब फिर से सेलिंग आता हुआ देखने मिल रहा है इंडेक्स में। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं सर चार्ट्स, बिकॉज इंटरनेशनली अभी भी थोड़े से मेटल प्राइसेस वगैरह कॉस्टिंग हाई रहने की उम्मीदें हैं। कल भी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आई थी S&P की ओर से कि मैन्युफैक्चरिंग जो है मेटल की वो थोड़ी सी कॉस्टली होने जा रही है आने वाले दिनों में। सर देखिए, ऐसी लास्ट थर्सडे जब मैं आपके साथ लाइव था तब भी हमने मेटल इंडेक्स CNX मेटल डिस्कस किया था। तब भी मैंने कहा था 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे के नीचे आया है, और ये स्टॉक 8 दिन का पुल बैक लेके दोनों एवरेजेस के ऊपर आगे क्लोज किया है, लेकिन कैंडल कंप्लीटली नेगेटिव है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसका टारगेट 8500 रहेगा। और आप देखिए 9600 से 8800 का लो बनाया है इस इंडेक्स ने, फिर वापस से 2 दिन पुल बैक देके आज फिर डाउन मूव दी है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम 8533 का जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन का स्विंग लो है, इसको हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ से कम 5-7-8% डाउनसाइड आराम से दिख रही है मेटल स्टॉक्स में। ये जब मेजर सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लेगा तो मैं जिस स्टॉक को बाई करना पसंद करूंगा वो रहेगा टाटा स्टील। JSW स्टील सेकंड बेस्ट काउंटर रहेगा। मैं हिंडाल्को और वेदांता को तो कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। अगर मुझे सपोर्ट जोन पे बाउंस बैक दिखेगा मेटल इंडेक्स में तो मेरी फर्स्ट चॉइस टाटा स्टील रहेगी, सेकंड चॉइस मेरी JSW स्टील रहेगी। ओके, टाटा स्टील, JSW स्टील दोनों ही मेटल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रह सकते हैं आने वाले दिनों में, फोकस रहेगा, तो इसके ऊपर हमने नज़र की। नेक्स्ट स्टॉक सर NHPC पे एक बार फोकस डालिए, बिकॉज आज ऑलमोस्ट 1% की मुनाफा वसूली देखने मिली। इनका प्रॉफिट जो है वो 1095 करोड़ से 1.2% कम हो गया, और आय जो है उनकी आमदनी जो है वो भी 2757 करोड़ से 2.3% कम हो गए। सो ऑब्वियसली थोड़ा स्लो डाउन तो है, ऊपर से सरकारी स्टॉक भी है, लेकिन गवर्नमेंट का इस सेक्टर पर थोड़ा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स जरूर देखने मिला था अब तक। आप कैसे देख रहे हैं सर चार्ट्स NHPC के? देखिए, मुझे NHPC के चार्ट्स बहुत ज़्यादा खराब दिख रहे हैं। इसमें 115 दिन का कप-एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, और कप-एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था जो फेल हुआ है, और स्टॉप लॉस लेवल इसके थे जो ब्रेकआउट था उसका स्टॉप लॉस लेवल 98 था, जिसके पास आगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग्स की लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगी जैसे ये 98 के नीचे जाएगा। 98 के नीचे जाते से इसमें फिर 76 तक की डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। तो मैं कहूँगा आप अपना 1-1.5 रुपए जो है इसको भी बचा लीजिए, इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। आज नहीं कर पाए हैं तो कल सुबह एग्जिट कर लीजिए, लेकिन अगर 98 के नीचे क्लोज करता है तब डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। 76 रुपीज इसमें
बड़ी तेजी से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट भी फेल किया है और PSU स्टॉक्स में सेलिंग भी है। ओवर ओनरशिप है लॉन्ग्स की, 98 के नीचे अगर स्टॉप लॉस कटता है बहुत तेजी से फ्लश वाली सेलिंग आएगी 76 तक। तो मैं इमीडिएट एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। आप इमीडिएट एग्जिट नहीं भी कर रहे हैं तो 98 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये 76 आता हुआ दिखता है। ઓકે, તો વધારે સેલિંગ માટે તૈયાર થઈ જાઓ. NHPC और ज़्यादा सेलिंग हमें ज़रूर देखने मिल सकती है. Yes, sir. इसमें में या सरकारी स्टॉक में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो एक ही गुजराती लाइन मुझे आती है मैं वही जोड़ना चाहूंगा, बधारे बधारे लेवानू और घटारे घटारे बेचानू। तो अगर स्टॉक गिर रहा है और अपने सपोर्ट्स को तोड़ रहा है तो आपको सेलिंग की सोचनी चाहिए, बाइंग की नहीं सोचनी चाहिए। ये सर गुजराती वाली प्लगइन आप बहुत बढ़िया करते हैं हर बार लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस प्रकार से NHPC हमने देखा, गवर्नमेंट सारे स्टॉक्स में अभी तो माहौल थोड़ा सा ऐसा ही बनता हुआ देखने मिल रहा है, नजर रखें। अगेन एक GPPL पर एक फोकस रहा था सर आज, गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। नंबर्स का रिएक्शन था लेकिन नंबर्स अच्छे आए थे और उसके बाद ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी हमने देखी थी एक टाइम पे, क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, सेलिब्रेटेड रहा है। पर इतनी तेज़ी के बाद अब क्या करें? चार्ट्स फॉर्मेशंस कैसे देख रहे हैं GPPL के? देखिए GPPL में थोड़ा सा वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और एक प्रॉब्लम इस स्टॉक में ये भी है कि अप कैंडल्स में वॉल्यूम कम है, डाउन कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा है, जो जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न होता है। तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें माल छोड़ रहा है और ये रिटेल के मतलब जो लास्ट फैग एंड में जो रिटेलर्स आते हैं, जो ट्रैप होते हैं, जैसे अभी PSU स्टॉक्स में ट्रैप हुए हैं, तो ये लास्ट में रिटेलर्स ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं और कोई बड़ा प्लेयर माल छोड़ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है। मैं फ्रेश बाइंग की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, और जिनके पास है उनको 211 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 211 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में बड़ी 20-22% की डाउनसाइड करेक्शन आती हुई दिखेगी। तो 211 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के है तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो फ्रेश लॉन्ग की बिल्कुल सलाह नहीं है। फ्रेश लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना है। व्यू इस प्रकार से यहाँ पर देखने मिल रहा है, स्टॉक पे नजर रखेंगे। सर एक स्टॉक आज निफ्टी 500 का टॉप लूजर था, बालाजी अमाइंस। नंबर्स का रिएक्शन देखने मिला सर, नंबर्स भी आप देखें तो ज़्यादा इतने अच्छे तो थे नहीं, और स्टॉक भी ऑलमोस्ट 2210 रुपये का लो बना दिया है। और मुनाफा देख लीजिए या रेवेन्यूज़ देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा कटौती उनके नंबर्स में देखने मिली है। सो 2210 के लोज के साथ बालाजी अमाइंस अब आगे आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए बालाजी अमाइंस में भी वही दिक्कत थी, 18 महीने में 2517% स्टॉक ने रिटर्न दिया था अपसाइड में, और उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। जैसा मैं कहता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50% चांस होता है कि 80% करेक्ट होगा और 80% चांस होता है कि 50% करेक्ट होगा। हाई से ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है स्टॉक में। ये अपना मेजर सपोर्ट जोन 1900 ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि उसको तोड़ते हुए 1400 रुपए तक नीचे आ सकता है। अगर आपके पास है तो आपको इमीडिएटली इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। जितना भी लॉस हो रहा है उतना लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। हाई लाइकली है कि पहले 1900 टेस्ट करेगा, उसको स्लाइस करके 1400 रुपए टेस्ट करेगा। તો આગળ જતા 1400 રૂપિયા સુધીના સંકેત પણ આવી શકે, આવ્યું બની રહ્યું છે બાલાજી અમાઇન્સ ફર્ધર સેલિંગની એન્ટિસિपेशंस। अंशुल जी वक्त हो चला है विदा लेने का, जो भी हमने डिस्कशंस किए हैं आपके डिस्क्लोजर्स। देखिए जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो उसमें से एक भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, हम जनरली ब्रेकआउट अपने क्लाइंट को डिलीवरी रिकमेंड करते हैं, तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक हो सकते हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, बट ऐसा कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं हुआ जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। તો ભારતીય માર્કેટ્સ આજે ઉપલા સ્તરોથી દબાઈ નમઃ જરૂર થયા છે। હવે આવી સ્થિતિમાં ટ્રેન્ડ હજુ ચેન્જ નથી થયો, કેમ કે આટલા દિવસોથી આપણે વેચવાલી જોઈ હતી, પણ હવે એ વેચવાલી પછી હવે શું કરવું એ આજે હજુ ક્લિયર થયું નથી। એટલે હવે વીકલી ક્લોઝ કેવું આવે છે આવતીકાલે તેના ઉપર વધારે આપણા સૌનું ધ્યાન રહેશે। અને આ સાથે જ આ શોમાં પણ હાલ બસ આટલું જ। મને યશને આપશો રજા। આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત।